Hello participants, welcome to the university level one day workshop that is a AI enhanced the research methodology, a student development program on the molecular docking, antimicrobial activity and ADMA analysis under the Indian knowledge system. So in this workshop we are going to discuss that is number one that is molecular docking, number two ADMA analysis, number three boiled egg analysis and number four whatever results are come that we are the synergetically we have discussed these results with the IKS that is Indian knowledge system. The theme of the main aim of this workshop is the blended with the power of artificial intelligence, the science born in India anew. The essence of the herb lies in the internal eternal wisdoms of the six knowledge that never fades. So what is the Indian knowledge systems? For this workshop, as we know that for this associate, we circulated those small vials in which contain the one clove, cardamom, and next one is the turmeric. According to the Ayurveda, all these are shows the antimicrobial as well as the antibacterial activity, so that these are the used for the wound healing properties. This is the use in the wound healing properties according to I guess. So that we are going to dock uh, all these the Ayurvedic we can call it as spices for the molecular docking. The how we can correlate the Ayurvedic properties with the antimicrobial activity example is the azadirachtin, which is extracted from the neem plant, which show antibacterial and antimicrobial actions. So azadirachtin inhibit the growth of harmful bacteria like the E. coli, Staphylococcus aureus, and the Pseudomonas originus. It targets the bacterial enzymes like the DNA gyrase, disrupting the DNA replications. And as we know that DNA gyrase is responsible for the DNA replications. So DNA replications होगा ही नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी नहीं तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपको एजेटेरेक्टिंग एंटीमाइक्रोबियल और एंटीमाइक्रोबियल एज वेल एज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करेगा. So in Ayurveda, neem is used at the Varna Rupana, that is wound healing. Formulation like the lip, that is a paste, or the oil, the form of oil. So wound healing is the combined result of antimicrobial, antiseptic, and anti-inflammatory actions. So these are the properties of the neem plant is mentioned in the Ayurveda, that is in the Indian knowledge system. So by using this modern technology, we are going to compare this activity with the computational chemist. So what is the molecular docking? The molecular docking is a computational simulations that predict how the ligand, that is a small molecules like the drug. In molecular docking, drugs is known as the ligand. For example, there is a caffeine bind at the active site of the receptor, that is a protein. In the molecular docking, the protein is the receptor and drugs is called it as a ligand. The key concept is the molecular docking. This tool first is find out the active site, which is the binder pocket in the protein surface. Then next one is the poses, different types of orientation and conformation of the ligand in the active sites, and interaction, like the various the hydrogen bonding interaction is there, hydrophobic forces are there, bypass taking, various types of interactions is there. So the molecular docking try all the interactions and it gives the best results in the form of the docking score. This is the uh, result after the docking. We will get the such type of images, and in this image you observe that some of the dark green colors circle is there. That is nothing but the amino acids residues, which is bonded through the van der Waals force. Conventional hydrogen bonding is there. So the such type of interaction is present, and which is the uniqueness of this molecular docking. The types of docking, rigid docking is there with the both the ligand and the receptor are the fixed. Fast, but it is a less accurate. Flexible docking allows the ligand and receptor to change their shapes. For example, ligand flexible docking, receptor flexible docking, and a fully flexible dockings. In this session, we are going to discuss the ligand flexible docking. So, when we are, whatever results are come from the molecular docking, we are trying to publish these results in the research articles
But in the research articles, we need some important data that is in the form of the receptor that is a protein. जब भी आप प्रोटीन के बारे में आप पेपर में लिखोगे तो क्या क्या एक्सपेक्टेड है. Then for the protein we require the their PDB-ID organisms. That means वो प्रोटीन किस organism से मिलता है. Most of the time Homo sapiens accept होता है. But in this workshop, we are going to planning for the antimicrobial and antibacterial activity, so that there is no need of the Homo sapiens. आपको जो भी मिलेगा ऑर्गेनिजम्स आपको लेना है. और यहाँ पर जो 3D स्ट्रक्चर जो आप सॉल्व करते हो प्रोटीन का, वो किस मेथड से 3D स्ट्रक्चर सॉल्व किया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से होता है. एंड लास्ट वन इज द रिजोल्यूशन. जो भी 3D स्ट्रक्चर होगा उसका रिजोल्यूशन इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली नियरली 2.60 एंगस्ट्रॉम यूनिट होना चाहिए. नहीं उससे नीचे अगर होगा तो इट इज गुड फॉर द आइडेंटिफाइंग द पॉकेट एंड साइड चेन. देन नेक्स्ट, जो भी आप ड्रग्स यूज करोगे फॉर दिस, उसके लिए उसकी पबकेम आईडी होनी चाहिए और उसकी स्माइलीज होनी चाहिए. वन बाय वन देखेंगे पबकेम आईडी क्या होता है और स्माइली आईडी क्या होता है. In this workshop, we are going to be discuss or trying to uh, we are going to check the wound healing anti-inflammatory properties of the extract which is derived from the spices like the cardamom, black pepper, turmeric, clove, neem, cinnamon, and fenugreek seeds. For example, cineol, which is present in the elaichi, when it react with the FABI, that is a 3-OIC, it shows the antimicrobial and antibacterial activity both, so that this is the best for the wound healing and anti-inflammatory. Another one is eugenol, which is present in the clove. It is also showing the both the type of activity when it react with the FBI protein, wound healing and inflammatory. So these are the case studies we are going to discuss in this workshop. For the docking platform, we are using the CB which is web-based server. And also we are going to ADMA analysis. ADMA analysis means what? After the taking the drugs in our body, we are going to check their absorption, distribution, metabolism, excretion properties. For this also we are using the Swiss ADMA analysis. And whatever drug that we discovered in these, so we are also going to check their drug likeliness property. And for this drug likeliness property, there is one rule which is known as the Lipinski rule of 5, which predict that drug can be taken orally or not. If suppose मैंने अभी एक ड्रग बनाया है नया, उसको मैं लिपिंस्की रूल चेक करूंगा और अकॉर्डिंग टू लिपिंस्की रूल अगर वो पांचों रूल में अगर फिट बैठता है, जैसे मॉलिक्यूलर वेट उसका लेस देन 5 डाल्टन होना चाहिए, लॉग पी की वैल्यू, लॉग हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स शुड बी द ग्रेटर देन 5, 10 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होने चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5. अगर ये सभी कंडीशंस फुलफिल करता है तो वो ड्रग मैं ओरली ले सकता हूँ. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है आइबुप्रोफेन. इसका मॉलिक्यूलर वेट 206.3 है, लॉग पी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3.5 है. उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर 1 है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर भी 2 है. तो सो दैट ये पास करता है सभी क्राइटेरिया को, एंड हेंस इट इज लाइकली टू बी ओरली एक्टिव. दैट मीन्स मैं इस ड्रग को ओरली ले सकता हूँ. नेक्स्ट वन होता है बॉइल्ड एग एनालिसिस. इसका भी एक टूल होता है. इससे आपको पता चलता है कि आपका जो ड्रग है वेदर इट इज अ पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को क्रॉस करेगा कि ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा. वी नो दैट एज अ बॉइल्ड एग में दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है व्हाइट कलर का पोर्शन और दूसरा होता है येलो कलर पोर्शन. इफ सपोज आपका ड्रग येलो कलर के पोर्शन में अगर दिखता है उसका स्पॉट, तो दैट मीन्स आपका ये जो ड्रग है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है. सो बेस्ट सीएनएस एक्टिविटी शो करेगा. अगर सपोज आपका ड्रग व्हाइट कलर पोर्शन पर अगर आता है तो दैट मीन्स वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पोर्शन को क्रॉस करता है. दैट इज यूज दैट कैन बी यूज फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस. So in this case, we are using the AI models for the of for the drawing the conclusions, that we are using the Copilot, ChatGPT and a Gemini. प्रॉम्प्ट कौन सा यूज करने वाले यहाँ पर, तो प्रॉम्प्ट यूज करने वाले यहाँ पर दिस इज द प्रॉम्प्ट. यहाँ पर आपको बताना है कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडी वाज कैरिड आउट बिटवीन द प्रोटीन. उसका पीडीबी आईडी लगेगा, उसका लिगैंड नेम लगेगा, लाइक दैट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डॉकिंग किस वजह से करना है. सो ये टीम है. इस टीम में टीम ए रहेगा, टीम बी है, टीम सी है, टीम डी है. ईच टीम को एक एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट दिया है. उसके बाद प्रोटीन कौन सा रहेगा वो दिया है, प्रोटीन की पीडीबी आईडी भी गिवन है. और जो भी कंक्लूजन होगा बाय यूजिंग दैट प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से वो ड्रॉ करेंगे. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज
डॉकिंग किस वे से करना है? सो अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे डॉकिंग किस वे से करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है CB.2। CB.2 जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट साइट पर क्लिक करना है। और इस फर्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको डॉक, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे डॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो समटाइम्स सर्वर बिजी होने की वजह से इस टाइप से आता है, तो किसी एक सर्वर पर क्लिक करना। मैं यहीं पे इसी को सिलेक्ट करता हूँ मैं। उसके बाद मैं सर्च करूंगा सबसे पहले प्रोटीन डेटाबेस बैंक। तो सो दैट मैं सर्च करता PDB। जस्ट राइट डाउन द PDB। तो यहाँ पर आएगा आपको सामने RSPDB फॉर्मेट। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो तो ये रहा कंप्लीट। दिस इज द कंप्लीट PDB बैंक। यहाँ पर n नंबर ऑफ PDB अवेलेबल है। तो सो दैट अपना जो रहेगा प्रोटीन डेटाबेस, ओके, उसमें फर्स्ट कंडीशन थी कि वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट फ्रॉम विच वन, द FABA। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ FAB। जैसे देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, दैट इज में FABI। इसका PDB ID है POIC। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ अभी। यहाँ पर सर्च करेंगे FABAI। जैसे मैं सर्च करूंगा यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ FABI, दिस वन, जस्ट क्लिक करो यहाँ पर। या फिर इस PDB आईडी को 3OIC, इससे सर्च करेंगे। 3OIC से सर्च करते हैं। 3OIC से जैसे सर्च करूंगा, दिस इज द प्रोटीन। ओके, ये जो दिख रहा है जिसको मैं हाईलाइट, ये जो पोर्शन दिख रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा था, ये है आपका PDB आईडी, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PDB आईडी मेंशन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो बैसिलस सबटाइलिस करके है यहाँ पर, जहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद मेथड, 3D स्ट्रक्चर आपने कहाँ से रिवील किया था, फ्रॉम द एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से यूज किया। उसके बाद इसका रिजोल्यूशन, ये रहा रिजोल्यूशन। तो आपको ये सब कुछ मेंटेन मेंशन करना पड़ता है। अब ये जो ये प्रोटीन ओपन होने के बाद यहाँ पर डाउनलोड फाइल में एक ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको डाउनलोड करना है लीगेसी PDB फॉर्मेट। इस लीगेसी PDB फॉर्मेट आपको इसमें डाउनलोड करना है। जस्ट क्लिक ऑन दैट, तो ऑटोमेटिकली ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। नेक्स्ट आपको चाहिए ड्रग। तो उसके लिए आपके पास डेटा बैंक होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पबकेम। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पबकेम। तो पबकेम के लिए मुझे ड्रग कौन सा चाहिए, ड्रग कौन सा चाहिए, तो मेरे लिस्ट में कौन सा ड्रग गिवन है, दैट इज अ साइनियोल। ये रहा।
CINEOLE। तो सो दैट मैं यहाँ पर अभी टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आएंगी, इसमें से फर्स्ट वन दैट इज ए यूकैलिप्टल, इसके ऊपर क्लिक करना है मुझे। ध्यान में रखिएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एंटायर दिस साइन वाला पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखेगा। और अगर आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर आपको स्माइलीज भी मिलेंगी, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने बोला था कि डर की कौन सी इंफॉर्मेशन रिसर्च आर्टिकल के समय आपको लगेगा, तो दिस इज द स्माइल, दिस वन इज द स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्च आर्टिकल। ओके, यहाँ पर आपके पास एक डाउनलोड का सेक्शन होगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड। डाउनलोड के सेक्शन में यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देना है 3D कन्फर्मर को। अगर 3D कन्फर्मर अवेलेबल नहीं है तो देन वी कैन गो फॉर द 2D स्ट्रक्चर। 3D कन्फर्मर में आपको फर्स्ट SDF फाइल को सेव करना है। जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरी SDF फाइल हो गई है सेव। यहाँ पर देखो दोनों भी फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। अभी मेरा दोनों भी जो इम्पोर्टेंट टास्क था वो कंप्लीट हो गया, दैट इज मेरा प्रोटीन भी डाउनलोड हो चुका है और मेरा ड्रग भी डाउनलोड हो चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं CBDoc 2 में जाता हूँ। CBDoc 2 में जाने के बाद यहाँ पर क्या बोला है, अपलोड द प्रोटीन। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मेरा प्रोटीन कहाँ पर है, तो ये रहा वो प्रोटीन। जस्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं एंड ओपन। तो मेरा प्रोटीन अपडेट होने तक मैं तब तक लिगैंड भी अपलोड कर लेता हूँ। लिगैंड जो अभी मैंने डाउनलोड किया था, देखो यहाँ पर लिख के आता है प्रोटीन अपलोडेड। सभी वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए, हेटेरो एटम्स भी उसने डिलीट कर दिए हैं। तो अभी नेक्स्ट इज व्हाट, ड्रग। ड्रग ड्रग के लिए ये रहा वो जो जिसको मैंने डाउनलोड किया था। जस्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको कर दूंगा मैं ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरा ड्रग भी जो है वो भी अपलोड हो रहा है। तो देखो यहाँ पर लिख के आया लिगैंड इज अपलोडेड, प्रोटीन इज अपलोडेड हो गया। तो दैट मीन्स बोथ द फाइल्स आर नाउ रेडी फॉर द डॉकिंग। जस्ट यहाँ पर नीचे दिखा है एटो ब्लाइंड डॉकिंग। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो। एटो ब्लाइंड डॉकिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो एक प्रोग्रेस बार दिख कर आएगा जहाँ पर कैविटी डिटेक्शन चालू है। ओके, तो ये सब कुछ होते रहेगा। साइड बाय साइड ADME एनालिसिस भी करते हैं, बिकॉज उसको 1 से 2 मिनट लगते हैं डॉकिंग के लिए। फॉर द ADME एनालिसिस जस्ट राइट डाउन स्विस ADME। स्विस ADME कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको, जस्ट इसको ओपन करना है। ओके, ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा जहां पर बोला कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो या फिर स्माइली इंसर्ट करो। दिस इज रिलेटेड टू द ड्रग, इसलिए आप जाएंगे फिर से पबकेम में। पबकेम में देखो आपका ऑलरेडी ड्रग की फाइल ओपन है। यहाँ से आपको स्माइली जो है इसको करना है कॉपी। कॉपी करो स्माइली को और जस्ट यहाँ पर पेस्ट करो। जैसे आप पेस्ट करोगे स्माइली को, यहाँ पर रन का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन द, देखिए रोल होते बराबर आपका उसका ADME एनालिसिस आ गया है। अभी इस ADME एनालिसिस में देखो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी गिवन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट इज आल्सो गिवन। ये रहा 154.25 मॉलिक्यूलर वेट। ओके, काइंडली नोट इट डाउन। मॉलिक्यूलर वेट आपको लगेगा ड्यूरिंग द कंक्लूजन। उसके बाद फर्स्ट लॉग पी की वैल्यू भी गिवन है। उसके बाद देखो यहाँ पर लिपिंस्की रूल क्या बोलता है। लिपिंस्की रूल बोल रहा है कि जीरो वायलेशन है, यानी जो भी रूल है पांचों के पांचों पांचों रूल उसके फॉलो हो रहा है। तो सो दैट अकॉर्डिंग टू लिपिंस्की ये ड्रग लाइकलीनेस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो ड्रग है इसको मैं ओरली ले सकता हूँ, ये उसने बताया है। ठीक है, लिपिंस्की रूल के हिसाब से। उसके बाद इसी डेटा में अगर मैं जाता हूँ शो बॉइल्ड एग की तरफ, तो देखो मेरा जो मेरा जो ड्रग है वो ड्रग एलो रीजन में आ रहा है। तो दैट मीन्स मेरा ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। अगर सपोज ये ड्रग इस पोर्शन पे होता, वाइट पोर्शन पे, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पर करता। बट यहाँ पर मेरा जो ड्रग है वो क्रॉस करता है एल ओरिजिन को। दैट मीन्स मेरा ड्रग
ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। तो सो दैट ये होगी आपकी एडीएमए एनालिसिस। एडीएमए एनालिसिस हो गया। अभी देखते हैं डॉकिंग का रिजल्ट क्या आ गया है। तो देखो डॉकिंग भी आल्सो कंप्लीटेड। तो आपको इस टाइप से डॉकिंग में आपको मिलेगा व्यू रिजल्ट। जस्ट क्लिक ऑन दैट व्यू रिजल्ट। अभी देखो रिजल्ट इस टाइप से आएगा, आपको एक टेबुलेटेड फॉर्म में मिलेगा। तो इस रिजल्ट में, इस टेबुलेटेड फॉर्म में देखिए, सबसे पहला दैट इज अ क्यूआर पॉकेट आईडी, दैट इज अ C3, उसका वीना स्कोर -5.6 है, जिसका वॉल्यूम है 1082। और ये है उसके टॉकिंग का सेंटर और उसका साइज। अभी यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होंगी, दैट इज -5 से नीचे जितना जितना आप जाओगे, दैट इज -6, -7, -8, उतना वो ड्रग बेस्ड बाइंडिंग शो करेगा। तो यहाँ पर आपको जो बाइंडिंग रिजल्ट्स मिलेगा, नंबर वन, जिसकी हाईएस्ट माइनस वैल्यू होंगी, दैट इज -5.6, दैट इज द वेरी ग्रेट वैल्यू। और वो ड्रग उस पोजीशन पर सबसे ज्यादा एक्टिव है। अगर मुझे सेकंड पोजीशन अगर देखना है, दैट इज C1 की, तो सबसे पहले आप C3 को डिसेबल करो और C1 को एक्टिवेट करो। तो देखो आपको वो ड्रग उस पोजीशन पर लेके जाएगा। ये रहा वो ड्रग। ओके, ये रहा वो ड्रग। अगर आपको C2 पोजीशन देखना है, तो जस्ट इसको डिसेबल करो, इसको अनेबल करो, तो आपको C2 पोजीशन पर लेके जाएगा। ये रहा वो साइट। बट वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द C3। तो सो दैट C2 को डिसेबल करेंगे और C3 को अनेबल करेंगे। तो ये रहा वो ड्रग जहाँ पर आपको बेस्ट बाइंडिंग एनर्जी मिली है। अभी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, आपको जो प्रॉम्प्ट है उसके लिए क्या क्या रखेगा। तो यहाँ पर आपको लगेगा वीना स्कोर, दैट इज -5.6। उसके बाद उसका जो है वॉल्यूम कितना है, तो 1082 वॉल्यूम है। और वहां पर उसने किस किस अमीनो एसिड के साथ इंटरेक्ट हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कांटेक्ट रेसिड्यू पर जाकर वहां पर क्लिक करना है। तो ये सभी चेन बताएगा जहां पर उसने अमीनो एसिड के साथ बाइंड किया है, दैट इज इंटरेक्ट हुआ है। ये सभी रिजल्ट्स आपको लगेंगे। अभी आपको इस इमेज को सेव अगर करना है, तो यहाँ पर देखो रिसेप्टर स्टाइल है। रिसेप्टर स्टाइल अगर मैं कार्टून के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इस फॉर्म में मिलेगा मुझे रिसेप्टर स्टाइल कार्टून के फॉर्म में। रिसेप्टर स्टाइल अगर मैं लिखता हूँ सरफेस वाला, तो मुझे इस फॉर्म में मिलेगा। रिसेप्टर स्टाइल अगर मैं चेक करता हूँ लिक्योरेसिस, तो इस फॉर्म में मिलेगा मुझे। मोस्ट टाइम एक्सेप्टेड होता है कार्टून फॉर्म, कार्टून वाला एक्सेप्ट होता है मोस्ट ऑफ द जर्नल्स में। और कुछ कुछ जर्नल्स में आपको सरफेस वाला भी एक्सेप्टेड हो जाएगा। ओके, अभी मुझे इसका इमेज जो है इसको डाउनलोड करना है, तो क्या करना है, जस्ट इस कैमरे वाले लोगो पर क्लिक करो और यहाँ पर ये फाइल को एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो फाइल जो है वो आपकी सेव हो जाती है। अभी ये मेरी फाइल लोड हो रही है और ये होगी सेव। तो ये दैट मीन्स यहाँ पर PNG के फॉर्म में मेरी फाइल सेव हो गई है। सो नाउ अभी मेरे पास पूरा डॉकिंग का रिजल्ट आ गया, सब कुछ आ गया है। और मेरे डॉकिंग का स्कोर कितना आया है, -5.6। तो मैं क्या करूंगा अभी, मैं ये रिजल्ट को, इस वाले रिजल्ट को इस फॉर्म में लिखूंगा मैं, ड्रॉ द कंक्लूजन्स। तो यहाँ पर देखो, ये रहा वो कंक्लूजन्स। ड्रॉ द कंक्लूजन्स। यहाँ पर मॉलिक्यूलर डॉकिंग की स्टडी कैरिड आउट किया है, तो मैंने ये प्रोटीन यूज किया था FABL। उसके बाद उसके PDB-ID इतना है। मैंने कितना कौन सा ड्रग यूज किया था, सिनॉल, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, कार्डामन से एक्सट्रैक्ट होता था। उसकी वुंड हीलिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी मुझे चेक करना था। अभी ये एक्टिविटी कहाँ से मिलेगी आपको, तो एक्टिविटी आपको मिलेगी यहाँ से। यहाँ पर बोथ जो दिया है ना, उसके एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करते हैं, वो आपको वहां पर मेंशन करना है। डॉकिंग वाज परफॉर्म बाय यूजिंग द CB-Dock2। डॉकिंग रिजल्ट दैट इज अ वीना स्कोर। वीना स्कोर यानी कौन सा स्कोर, ये वाला स्कोर, वीना स्कोर। ये आपको मेंशन करना है। अलॉन्ग विद दैट उसकी कैविटी भी आपको मेंशन करनी है। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आपको उसको कैविटी भी मेंशन करनी है। उसके बाद कैविटी स्कोर, उसके कैविटी का वॉल्यूम आपको मेंशन करना है। उसके बाद साइट रेसिड्यूज बोला गया, व्हाट इज द साइट रेसिड्यूज। तो वहां पर देखो, कांटेक्ट रेसिड्यू करके एक ऑप्शन था।
ये वाला कॉन्टेक्ट रेसिड्यू, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और एक कंप्लीट जो चेन है इसको कॉपी करके पेस्ट करना है उसमें, ठीक है। कॉपी करके आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करना है। और उसके बाद एडीएमए एनालिसिस, एडीएमए एनालिसिस से उसका मॉलिक्यूलर वेट, लॉग पी की वैल्यू जो फर्स्ट वन आपको मिली थी वो आपको लेना है। और लिपिंस्की रूल वायोलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वहां पर देर इज नो वायोलेशन। तो रूल फॉलो कर रहा है क्या लिपिंस्की रूल, यस, तो यहाँ पर लिखेंगे एस। और बॉइल्ड एग एनालिसिस, बॉइल्ड एग एनालिसिस में मेरा जो ड्रग था वो कौन से रीजन पे था, एलो रीजन पे था। कौन से रीजन पे था, एलो रीजन। तो सो दैट ये हो गया मेरा प्रॉम्प्ट कंप्लीट रेडी। इसको करूंगा मैं कॉपी और पेस्ट करूंगा मैं चैट जीपीटी को या फिर को पायलट को या फिर जेमिनाई को। तो मुझे कुछ कंक्लूजन इस टाइप से दिखाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोलता है, द molecular docking study between this protein and what ate cyanol is the major bioactive compound obtained from the cardamom, revealed that a promising interaction profile that supports its own healing and anti-inflammatory potential. The compound showed the Wiener docking score is -5.6, indicating the moderate binding affinity. The identify the binding residues चेन ए, ये सब कुछ आपको दिखेगा। और उसके बाद वो बोलेगा कि उसका एडीएम एनालिसिस से वो पता करेगा कि उसका आप ओरली ले सकते हो। ये जो कंक्लूजन है दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द चैट जीपीटी। और ये जो इमेज फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये मुझे को पायलट ने एक इमेज फॉर्म में दैट इज विजुअल ग्राफिक्स में मुझे बना के दिया है। ये किस में यूज हो सकता है, ये यूज हो सकता है फॉर द ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, for this graphical abstract. So in this way, by using the AI, we can conclude, we can draw the conclusions of the docking। और आपको इजी वे से बताएगा व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट। सो आयुर्वेदा में ऐसे बहुत सारे कंटेंट अभी भी पेंडिंग है जिनका मॉलिक्यूलर डॉकिंग हुआ नहीं है। सो वाई यूजिंग दैट आयुर्वेदा बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उससे मॉलिक्यूलर डॉकिंग करके आप स्टडी को आप इनहांस कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। विद दैट चेंजेस आप नए नए मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हो बाय सिंपल द मॉलिक्यूलर डॉकिंग। पहले क्या होता था, सबसे पहले ड्रग सिंथेसिस होता था, फिर उनकी एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी चेक होती थी। बट अभी क्या हो गया, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की वजह से सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर डॉकिंग के थ्रू उनके बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करो। अगर बाइंडिंग एनर्जी अगर बेस्ट होगी, देन एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट, drugs. So hope you will understand all the things. So thank you for this workshop। और ये कुछ मूवीज है अ, जिसको आप देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू।